Dear students, welcome for this video lecture series on subject Surveying 2. Now today we will start with our first unit, and that is regarding tachometric survey. So in tachometric survey, as in previous lecture we have seen some of roundup of that, what content is there. So there are different methods of tachometry and the different instrument we are using for tachometric survey. Now one by one we will learn all of these units. So here in first lesson 1 in tachometry we will learn regarding the tachometric basic. In tachometric basic, first we have to understand what is actually the definition of tachometry. So here you can say that tachometry is the branch of angular surveying. So here you can say angular word is important, where you can talk about angular measurement. So tachometry is the branch of angular surveying in which horizontal and vertical distances they are calculated by using the telescopic instrument. So instrument like theodolite and level we are using for measurement of horizontal and vertical distance, and that is the beauty of tachometry. By using the telescopic instrument we can find out the distance which we are in survey 1 we are measuring the distances by using the tape or by using the chain, but here in tachometry we can measure the horizontal distance and vertical distance by using optical means by using telescope, that is theodolite or level. So here particularly for tachometry we are using theodolite as one of our instrument. Now here this is one of the rapid method and it is very convenient as compared with the tape and chain. We have to hold the tape for the particular distance, and on the ground if there are some undulations, there is a sag correction, there is a slope correction, there is a different correction of temperature and pull effect. So all these are get eliminated when we measure the distance by using tachometry. Therefore tachometry is a rapid method of measurement and it is also very convenient because less field work is required in this measurement. Now here the one of the advantage of the tachometry is obstacles are overcome and the steep or broken ground is also there, then also we can measure the distance. हमको पता है कि यदि ग्राउंड में अंडुलेशंस रहे या फिर वहाँ पे बुशेस है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, बीच में बिल्डिंग आ गई या पत्थर आ गए या अंडुलेशन टोपोग्राफी है, तो टेप से या चेन से मेजरमेंट करना हमें काफी प्रॉब्लम होती है, कई सारे हमको दिक्कतें और कई सारे कैलकुलेशंस और ये सारा करना होता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऑब्स्टकल्स को ओवरकम करके टेलीस्कोप से सिर्फ ऑब्जर्वेशन लेके हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फील्ड वर्क इन द सर्वेइंग. सो हियर बिकॉज वी आर मेजरिंग द distances by using the tachometer, so here we will get the more accuracy, and as much as the accuracy is more than 1 in 1000, so as compared to tape we can find out more accurate distance by using tachometry. Here therefore for higher accurate surveying and checking for the distances we are always using the tachometric measurement for horizontal or vertical distances. Now in that way we can use the tachometry for different survey work. Now here the important is we are using the instrument that is called as tachometer. So here tachometer we have to first understand. Now as we have seen, हमने थियोडोलाइट के अंदर आपने देखा है कि थियोडोलाइट के अंदर अपनी टेलीस्कोपिक ट्यूब है और ये टेलीस्कोपिक ट्यूब पे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पे हमारा आई पीस है. अब इसके अंदर में से हम लोग इसको स्टैंड पे लगा के जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ पे हमको एक सर्कुलर डायफ्राम दिखता है और इसके अंदर एक वर्टिकल क्रॉस हेयर और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर दिखती है. सो दिस इज आवर सिंपल अरेंजमेंट. अब ये ऐसा जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप के अंदर यदि आपने एडिशनल स्टैडिया डायफ्राम, दैट वर्ड नाउ यू हैव टू रिमेम्बर, यदि हमने स्टैडिया डायफ्राम इसके टेलीस्कोप के अंदर ऐड कर दिया तो सिंपल टेलीस्कोप हमारा कन्वर्ट हो जाता है टैकोमीटर में. सो एनी थियोडोलाइट वी कैन यूज इट एज ए टैकोमीटर व्हेन वी ऐड एडिशनल स्टैडिया डायफ्राम.
सो स्टैडिया डायफ्राम इज नथिंग बट दिस टाइप ऑफ डायफ्राम। तो यहाँ पे आपको ये डायफ्राम जो दिख रहा है इस प्रकार से हमारा डायफ्राम होगा। सो हमारे ये सर्कुलर डायफ्राम के अंदर एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर है और एक वर्टिकल क्रॉस हेयर है और इसके अंदर दो अलग से स्टैडिया वायर है। सो दीज आर कॉल्ड एज स्टैडिया हेयर। ये जो हेयर है तो हम लोग अभी जब सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज करते तो यहाँ पे लेवलिंग का सिर्फ हम लोग एक ही रीडिंग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, लेकिन टैकोमेट्री में हमें विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल क्रॉस हेयर और टॉप स्टैडिया हेयर और बॉटम स्टैडिया हेयर तीनों भी रीडिंग लेना होता है। सो हियर द टैकोमीटर is the theodolite or transit theodolite which is fitted with stadia diaphragm. So stadia diaphragm is specially added into the telescope, so that telescope or theodolite we can use as tachometer. So here with the help of crosshair and with the help of stadia hair we are taking the three observations. हम तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले रहे हैं। जैसा हमने डंपी लेवल के अंदर लेवलिंग स्टाफ रखा था और हमने डंपी लेवल में से ऑब्जर्वेशन लिया तो सिर्फ सेंट्रल क्रॉस हेयर का रीडिंग ही हम लोग लेते थे। सो दैट इज सिंपल वन रीडिंग ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे हमको टॉप और बॉटम क्रॉस हेयर के हिसाब से भी लेना है और सेंटर का भी रीडिंग लेना है। तो लेवलिंग स्टाफ पे हम लोग तीन रीडिंग ले रहे हैं एंड देयरफॉर द सिंपल एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप वी कैन यूज एज ए टैकोमीटर। एक्सटर्नल फोकसिंग वाला भी टेलीस्कोप हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप के अंदर एडिशनली हमको एनालिटिक लेंस लगाना होता है। So that we will see one by one. So we can use any type of theodolite fitted with stadia diaphragm. We can use it as a tachometer. तो हमको यदि किसी ने पूछा कि टैकोमीटर क्या है, so tachometer is nothing but a theodolite fitted with stadia diaphragm. So that theodolite or that tachometer now we are using for measurement of horizontal and vertical distances. So how it is measured? That we will see one by one. So for tachometry the two important instruments are required. हमको एक लगेगा पहले तो theodolite जिसके अंदर स्टैडिया डायफ्राम लगा होगा और दूसरा हमको लगेगा लेवलिंग स्टाफ। तो लेवलिंग स्टाफ आपने लेवलिंग सर्वे में देखा है, सिंपल हमारे मेजरमेंट्स दिए उसके ऊपर सेंटीमीटर के मीटर के, तो उससे हमको रीडिंग लेना है और टेलीस्कोप से हमको देखना है। जब हम लोग theodolite का इस्तेमाल करेंगे तो हमको एक एडेड एडवांटेजेस है कि इसका जो टेलीस्कोप है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम लोग ले कर सकते, यानी ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके तरफ भी देख सकते, नीचे ऑब्जेक्ट होगा तो वहां भी देख सकते, या फिर हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली भी रोटेट कर सकते। सो जब थियोडोलाइट हम लोग टैकोमीटर के जैसा इस्तेमाल करते हैं तो वी आर गेटिंग टू एडवांटेजेस, यानी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट नीचे ऊपर है तो भी हम लोग डिस्टेंस गिन सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस भी गिन सकते हैं। सो ऑल दैट वाज द एडवांटेज वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर। नाउ अब ये टैकोमीटर के अंदर हम लोग जो स्टैडिया डायफ्राम यूज कर रहे हैं, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैडिया डायफ्राम एज शोन इन हियर। सिंपल वाला डायफ्राम यहाँ पे दिखाया गया है जिसके अंदर हमको यहाँ पर एक क्रॉस हेयर दिख रही है हमको, एंड वन इज हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, वन इज वर्टिकल क्रॉस हेयर, और उसके अंदर 2 एडिशनल हमारी स्टैडिया वायर है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टैडिया डायफ्राम। कुछ मैन्युफैक्चर में अलग अलग प्रकार के स्टैडिया डायफ्राम इस्तेमाल किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो इन द स्टैडिया डायफ्राम यू विल अगेन हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, और वर्टिकल के जगह पर यहाँ पे 2 क्रॉस दिए हैं और इसको यहाँ पे 2 स्टैडिया हेयर दिए है। So this is one of the arrangement, and this is another arrangement here. The 2 lines are there जहाँ पे हम लोग लेवलिंग को स्टेप को मैच कर सकते, और इसके साथ में फिर यहाँ पे 1 सेंट्रल हेयर एंड 2 टॉप एंड बॉटम हेयर, ऐसे फिर से हमारे पास में 2 क्रॉस हेयर है। So 3 observation you can take. So similarly there are different arrangement of the cross hair in the different manufacturer, and this type of stadia diaphragm they are fitted inside the telescope. अब ये फिटेड करने के वजह से जो हमारा थियोडोलाइट है उसका इस्तेमाल हम लोग टैकोमीटर के जैसा कर सकते हैं। सो हियर आपको यहाँ पे दिखेगा कि टैकोमीटर यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके फीचर्स हमारे पास में क्या क्या होंगे। नाउ व्हेन वी यूज दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सो वी विल लर्न लेटर ऑन हाउ वी कैन कैलकुलेट द मेजरमेंट और हाउ द डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग टैकोमेट्री। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल बताना चाहूंगा। सपोज हियर यू कैन कंसीडर दैट वी आर यूजिंग द टैकोमीटर। तो टैकोमीटर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सो वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ लेवलिंग स्टाफ। अब ये लेवलिंग स्टाफ के अंदर हमारी सेंट्रल क्रॉस हेयर है और इसके अलावा 2 स्टैडिया वायर है। तो हम लोग ये सेंटर का भी रीडिंग लेवलिंग का जो है वो लेंगे, और एक यहाँ का रीडिंग लेंगे और एक यहाँ का रीडिंग लेंगे।
सो विद द हेल्प ऑफ थियोडलाइट को हम लोग पहले ट्राइपॉड पे सेट करेंगे, उसके लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग करने के लिए हमको टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना है। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के लिए आपने पहले सेंटरिंग किया, फिर लेवलिंग किया और फिर रिमूविंग पैरेललेक्स किया। पैरेललेक्स करने के बाद में आपको डायफ्राम के अंदर, ये हमारा जो डायफ्राम है उसके अंदर एक वर्टिकल क्रॉस हेयर और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, ये दोनों भी आपको दिखने वाले हैं। और इसके बाद में फिर दो आपको टॉप और बॉटम स्टैडिया हेयर दिखेंगे। तो ये लेवलिंग स्टाफ को आपने फोकस कर दिया तो आपको सेंटर, टॉप और बॉटम ऐसे आपको 3 रीडिंग लेने पड़ेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल दिस रीडिंग वी गॉट एज 1.4 और इसके नीचे का रीडिंग हमको मिल गया 1.2 और इसके ऊपर का रीडिंग मिल गया हमको 1.6। सो विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर लेवलिंग स्टाफ पे 3 रीडिंग हमने लिए। अब 3 रीडिंग लेने के बाद में हम लोग ये टॉप स्टैडिया हेयर से बॉटम स्टैडिया हेयर इसका डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बी अगेन 1.6 माइनस 1.2, सो यू विल गेट दिस डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज एस और इट इज कॉल्ड एज स्टाफ इंटरसेप्ट। यस, ये स्टाफ जो इंटरसेप्ट है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दैट फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये डिस्टेंस पता चल गया। सो अभी मुझे ये डिस्टेंस पता होने से मैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो यहाँ हमने थियोडलाइट रखा और ये हमारा ग्राउंड है और हमने यहाँ पे स्टाफ रखा। तो स्टाफ पे हम लोग क्या करेंगे, एक तो हमारी जो सेंट्रल क्रॉस हेयर है उसका एक रीडिंग लेंगे, एक हमारा टॉप का रीडिंग लेंगे और एक हमारा बॉटम का रीडिंग लेंगे। तो आपको यहाँ पे स्टाफ के ऊपर जो रीडिंग मिलेंगे उससे आप ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो और ये जो डिस्टेंस है इसको बोला गया है स्टाफ इंटरसेप्ट। अब यदि आपको फॉर एग्जांपल ये एस मालूम है और इमेजिन करो कि आपको ये वाला एंगल मालूम है, तो ये एंगल मालूम होने से आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, यहां से यहां तक का बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वी कैन यूज बेस्ड ऑन दिस। ये डिस्टेंस हमको पता है, पहले यहाँ पे ये डिस्टेंस पता है और ये एंगल यदि पता है इंस्ट्रूमेंट का तो हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और फॉर दैट वेयर दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस d और इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू KS प्लस C। अब ये KS प्लस C और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू KS प्लस C वेयर S इज कॉल्ड एज स्टाफ इंटरसेप्ट। तो इतना इजी काम हो जाता है हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए। आपको सिर्फ रीडिंग से स्टाफ इंटरसेप्ट निकालना है, रीडिंग लेके और उसमें अंदर पुट कर दो। अब यहाँ पर हमारे 2 अलग अलग चीजें आ गई। पहला आ गया हमारा K। सो दिस K इज कॉल्ड एज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो जनरली थियोडलाइट जब मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग उसके अंदर क्रॉस हेयर डालते हैं। सो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, ये K की वैल्यू इस प्रकार से सेट करता है। मैन्युफैक्चर करते समय ये डायफ्राम का डिस्टेंस इस प्रकार से सेट करता है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू, जनरल वैल्यू कितनी आती है 100। सो ऑलवेज देयर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज केप्ट 100। और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर उसको कभी कभी 95 रख सकते, कोई 200 रखते, कोई 90 रखते। सो इट डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। अब वो भी हम लोग देखने वाले हैं। यदि आपको नया थियोडलाइट दे दिया तो उसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको मालूम नहीं तो फिर आपको पैसा पता कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि हमको जो थियोडलाइट दिया है उसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना है। सिमिलरली जैसा ये हमारा K है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, वैसा यहाँ पे है C है एडिटिव कांस्टेंट। तो ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है। बट हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट ये जो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है जो 100 है, इसके अंदर की जो एक्यूरेसी है वो चाहिए अपने को 1 in 1000। सो एरर इन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट डज नॉट एक्सीड मोर देन 1 in 1000। यानी एग्जैक्टली 100 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है 99.905 ऐसा कुछ मिले, तो थोड़ी सी एरर उसके अंदर आ गई। तो 1 in 1000 की एरर अलाउड है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के अंदर। देन द एक्चुअल हॉरिजॉन्टल लाइन दैट शुड बी एग्जैक्टली द मिडवे बिटवीन द 2 लाइंस। ये भी एक रिक्वायरमेंट है हमारी टैकोमीटर की। जब हम लोग ये टैकोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे डायफ्राम के अंदर ये वाला जो हमारा सेंट्रल क्रॉस हेयर है, ये सेंट्रल क्रॉस हेयर से टॉप स्टैडिया हेयर और बॉटम स्टैडिया हेयर, ये दोनों का डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए। जैसा कि अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये वाला हमारा और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों भी डिस्टेंस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
So that is another requirement for telescope use as a tachometer. So in this way, for tachometer we have to satisfy the various requirements, and they are called as feature of tachometer. So another feature is the telescope should be truly analytic. ये और सबसे इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक का मतलब ये है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के फार्मूले से हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए जो भी उसके स्टैंडर्ड्स लगते हैं वो स्टैंडर्ड वहां पे सेट होने चाहिए, यानी लेंस उसका एनालिटिक होना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लोग डिस्टेंस का कैलकुलेशन एक्यूरेटली करते आने चाहिए, और उसके लिए एनालिटिकल लेंस हमारे टैकोमीटर के अंदर फिटेड होता है। अब एडिशनल इसमें क्या हो गया कि आपका जो टेलीस्कोप का ट्यूब रहता है उसमें यहाँ पर एक आईपीस है और यहाँ पर एक अपना ऑब्जेक्टिव ग्लास है। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव ग्लास रहता है और यहाँ पर एक आईपीस रहता है, और इसको अब हम फोकस करके सेट करते। अब यहाँ पे आ गया एडिशनल एनालिटिक लेंस, यानी जब हम लोग टैकोमीटर को यूज करते हैं तो टेलीस्कोप के अंदर एक एनालिटिकल लेंस एडिशनल लग जाता है। सो दिस इज एनालिटिकल लेंस। तो लेंस की संख्या होगी 3 यहाँ पे। तो इसके अंदर से जो दिखने वाला विजन है, जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो अंदर का विजन थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। एंड फॉर दैट पर्पज द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल, हैविंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 20 to 30 टाइम्स द डायमीटर। तो यहाँ पे इसके अंदर के जो लेंस है, ये टैकोमीटर में जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो लेंस है ये पावरफुल वाले लेंस होना चाहिए। उसका जो मैग्निफिकेशन का पावर है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि अंदर में आपको धुंधला नहीं दिखेगा, क्लियर दिखेगा, क्योंकि हमको 3 रीडिंग लेना है क्रॉस हेयर से। So that is again one of the requirement for the tachometer, that it should have a powerful lens. Then the aperture of the objective should be 35 to 45 mm diameter. कम से कम 35 से 25 mm का डायमीटर होना चाहिए हमारा ये वाला, यहाँ का जो डायमीटर है ट्यूब का। तो फ्रंट का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका डायमीटर मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे 35 से लेके 45। सो दैट इज अगेन वन अदर रिक्वायरमेंट, क्योंकि बड़ा लेंस रहेगा तो अंदर लाइट ज्यादा आएगा तो आपको क्लियरिटी से टेलीस्कोप के अंदर दिखेगा। सो दैट वे दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द टैकोमीटर। तो पहला फीचर हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट उसका 100 होना चाहिए। दूसरा फीचर हमने देखा कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के अंदर जो एरर है वो 1 in 1000 इतनी ही होनी चाहिए। फिर तीसरा फीचर हमने देखा कि जो एक्सियल सेंटर हेयर है वो एग्जैक्टली सेंटर में होनी चाहिए, दोनों भी क्रॉस हेयर के। सो दैट इज थर्ड फीचर रिक्वायर्ड। देन फोर्थ हमने देखा कि जो एनालिटिक लेंस है ये ट्रूली एनालिटिक लेंस होना चाहिए, यानी उसकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। देन अनदर इज इट शुड बी ए पावरफुल लेंस। पावरफुल लेंस होना चाहिए, मैग्निफिकेशन उसका 20 to 30 टाइम्स होना चाहिए, ताकि आपको क्लियर डायफ्राम अंदर से दिख सके, और दूर के डिस्टेंस को भी देखने के बाद में आपको 3 ऑब्जर्वेशन लेते आने चाहिए। और इसके लिए टेलीस्कोप के अंदर लाइट अच्छा आना चाहिए। इसके लिए टेलीस्कोप का जो अपर्चर है यानी डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोपिक ट्यूब ये होने वाले 35 से 45 mm। सो ऑल विथ दीज आर द फीचर्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिंपल थियोडाइट इनटू टैकोमीटर। So one by one we will learn regarding this. Now in this unit, when we use this type of tachometer for measurement of horizontal and vertical distance, I have already told you there is one simple formula. That formula is given as D is equal to K into S plus C, where हमने देखा है कि S क्या है हमारा, it is a staff intercept. S is staff इंटरसेप्ट। सो दिस स्टाफ इंटरसेप्ट ये हम कैसा निकाल रहे हैं, तो हमारे जो लेवलिंग का स्टाफ है इस पे हम लोग एक सेंटर का रीडिंग, एक टॉप का रीडिंग, एक बॉटम का रीडिंग ले रहे हैं, तो 3 रीडिंग मिल रहे हैं। सो टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग ये कर लेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे यस। अब ये एस पता होने से और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एडिटिव कांस्टेंट यदि पता हो गया तो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द स्टाफ स्टेशन, ये जो डिस्टेंस है डी, वो हम लोग टैकोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वी हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ टैकोमेट्री। सो इन दिस यूनिट हम लोग स्टैडिया मेथड क्या है वो देखने वाले हैं 1 by 1। देन अनदर मेथड वी विल जंप ओवर, दैट इज मूवेबल हेयर मेथड, सबटेंस मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। फिर तीसरी मेथड हम लोग देखेंगे जिसका नाम है टेंजेंशियल सिस्टम। एंड देन फोर्थ मेथड वी विल लर्न, दैट इज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर measurement of horizontal and vertical distances. So in this unit
वी विल ऑल लर्न द 4 मेथड्स और इसी के ऊपर के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देयर बाय वी विल कंप्लीट आवर फर्स्ट यूनिट. नाउ हियर फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस देयर इज अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ स्टैडिया मेथड. तो ये प्रिंसिपल हमको पता होना चाहिए. जैसा भी मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट एट दिस लोकेशन. तो हम लोग यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप विद टैकोमीटर फिटेड रख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं स्टाफ. सो आई हैव प्लेस द स्टाफ एट दिस लोकेशन. तो अब यहाँ पे मैंने स्टाफ रख लिया, तो स्टाफ पे मैं क्या करूंगा, रीडिंग लूंगा. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये मैंने कंसिडर कर लिया 30 मीटर का. तो मुझे क्या मिलेगा, ये इतना बड़ा स्टाफ इंटरसेप्ट मिलेगा. आई विल गेट द स्टाफ इंटरसेप्ट एस दिस मच, इतना मिलेगा. अब यदि मैं प्लेन ग्राउंड पे खड़ा हूं, मेरा लेवलिंग का ग्राउंड प्लेन ऐसा ऐसा है. अब ये ग्राउंड पे मैंने ये स्टाफ को थोड़ा सामने लिया, तो क्या होने वाला है कि यहां से जब मैं रीडिंग लूंगा तो मेरा स्टाफ रीडिंग इतना ही दिखेगा मुझे. यानी यहाँ पर एस क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया. फिर मैं आगे आता हूं तो यहाँ पर एस मेरा फिर से और कम हो जाएगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का डिस्टेंस कम हो रहा है. एंड यही हमको समझना है कि ज्यादा स्टाफ इंटरसेप्ट है तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, कम हो गया स्टाफ इंटरसेप्ट तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो और कम हो जाएगा. बिकॉज हियर व्हेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप अप टू द स्टाफ दिस आइसोस्केल ट्रायंगल इज फॉर्म. दिस इज द आइसोस्केल ट्रायंगल. नाउ विथ दिस आइसोस्केल ट्रायंगल आवर बेस इज फिक्स विच इज ऑन द स्टाफ इंटरसेप्ट. तो आपका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस चेंज हो गया तो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट भी चेंज होता है. So here you can simply say that D is directly proportional to staff intercept. Yes. So already just as we have learned, so D is directly proportional to S. यानी D बढ़ता है तो S बढ़ता है, और यही हमारा स्टैडिया मेथड का प्रिंसिपल है. So what principle says? The स्टैडिया method is based on the simple principle that is the ratio of perpendicular to the base is constant. यानी दिस S1 डिवाइडेड बाय D1 यदि हम लोग करेंगे तो इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाय D2 हो जाएगा, या S3 डिवाइडेड बाय D3 हो जाएगा. सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट हियर. सो OC यानी हमारा O से लेके C का डिस्टेंस यहाँ तक का, सो OC डिवाइडेड बाय AB यानी S डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC1 यानी ये हो जाएगा. OC1 इतना डिस्टेंस है तो इसका स्टाफ इंटरसेप्ट है A1 B1. फिर उसके आगे जाएंगे OC2, तो OC2 डिस्टेंस कम हो गया तो A2 D2. तो ये सबका रेशियो जो है वो एक जैसा ही रहने वाला है, बिकॉज इट इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल. सो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, स्टाफ इंटरसेप्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड दैट इज एक्चुअली द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ स्टैडिया मेथड. तो हम लोग यहाँ पे इक्वेट करके इसको बोल सकते हैं कि भाई ये जो रेशियो है ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, एंड दैट रेशियो इज denoted by k, that is multiplying constant. और एक्चुअली उसका कैलकुलेशन यदि करना है so it comes out to be 1/2 cot beta by 2 where beta is this angle. तो मैंने जैसा बताया था कि ये एंगल हमको पता होगा तो हम लोग ये बेस पता है तो ये हाइट निकाल सकते, एंड दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री. सो दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इन द टैकोमेट्री which is denoted by k and which is equal to 1/2 cot beta by 2, where beta is the angle between this imaginary line of sight going towards the top and bottom crosshair. So in this way, by using the simple principle of tachometry, we can calculate the distance after measuring the staff intercept. तो ये एकदम सिंपल तरीका है यहाँ पे कि जहाँ पे आपको लेवलिंग स्टाफ रख दीजिए, यहाँ पे टेलीस्कोप सेट कर लीजिए और आपको स्टाफ के ऊपर सिर्फ 3 रीडिंग लेना है. 3 रीडिंग ले लिए तो टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग आपको मिल जाएगा S, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफ इंटरसेप्ट. S कैलकुलेट कर लिया तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, और D इज इक्वल टू KS प्लस C, ये फार्मूले से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं. सिमिलरली हम लोग वर्टिकल भी निकाल सकते हैं. 1 बाय 1 हम लोग आगे जाने वाले हैं. सो नाउ इन दिस लेसन 1 हमने क्या क्या सीखा, तो क्वेश्चंस आर देयर ऑन द टॉपिक. सो यू कैन सी दैट व्हाट इज टैकोमेट्री, दैट यू कैन लर्न हियर. देन वी हैव लर्न व्हाट इज द स्टैडिया डायफ्राम, दैट इज आल्सो वी हैव लर्न. देन व्हाट इज स्टैडिया रॉड, स्टैडिया रॉड इज नथिंग बट द लेवलिंग स्टाफ, सिंपल लेवलिंग स्टाफ. देन sketch the different types of diaphragm.
ये भी क्वेश्चन आपने देखा, अलग अलग टाइप के डायफ्राम हमने देखे हैं. सो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस. Then what are the features of tachometer? So we have learned the features of the tachometer in this lesson, and then we are at last we have seen what is the principle of tachometry. So in this way, in our lesson 1 we have seen that there are different basic points regarding the tachometry. In the next lesson, in the lesson number 2, we will learn regarding the tachometry cases and where the staff is held vertical. So thank you for this today's lesson 1, and in the next video we will learn more about tachometry.